Assalamualaikum ji, Dr. Huma Saif here. Welcome to the show Fun Platter, a show that's all about the experiences, interesting aspects, adventures of my guests. तो आज हमारा काफी diverse माशाल्लाह guest की list है. फरा है वो लंदन से होती है, मूसा मैनचेस्टर से और असद भी मैनचेस्टर से. So welcome to the show, guys. Thank you. Assalamualaikum. Thank you for inviting Dr. Huma. My pleasure. तो let's start with फरा, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान का लाइफस्टाइल और इंग्लैंड का लाइफस्टाइल अगर आप कंपेयर करें, there's a huge difference, even architecture, हर चीज में. तो फरा आप पहले बताएं कि क्या struggle क्या थी यहाँ आने की, and how do you find, I mean, how hard it was to adjust in this new environment? My story is a little bit different because मैं यहाँ पे जब मैं पाकिस्तान मैंने छोड़ा था तो मैं एक्चुअली दुबई में रहती थी. दुबई का लाइफस्टाइल और ज़्यादा ग्रैंड था. उस ज़माने में दुबई इतना डेवलप नहीं था, छोटी सी टाउन थी, पर इट वाज लग्जरी बहुत थी. फिर मेरी शादी हुई और मैं हॉलैंड चली गई बिकॉज मेरे हस्बैंड हॉलैंड से थे. एंड फिर हम जर्मनी चले गए और फिर वहाँ से हम कुछ सालों के बाद वहाँ रहने के बाद मैं और हस्बैंड एंड बच्चे यहाँ आए. एंड द रीज़न वाज कि मेरी यहाँ पे फैमिली थी, मेरे पेरेंट्स यहाँ थे, मेरी बहन उसकी फैमिली. And my sister was going through a difficult time. Her son was not well, so we decided to come here, leave everything, and come here to support her. So yes, it was for me the first shock was not so much of coming to England. When I first went to Holland from Dubai, पहले Karachi, Pakistan, then Dubai, and then Holland. तो I remember कि जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो मैं इतनी खुश हुई थी कि वहाँ हर वक्त टिप टिप बारिश होती रहती थी. और मैं सोचती थी कि अरे मैं तो पकौड़े पक्का बनाऊंगी and you know इस तरह की चीजें. And my husband would laugh at me. My husband would laugh at me, कहता था अभी एक हफ्ता दे दो you'll be fed up, 2 हफ्ते दे दो you'll. And it's true because बारिश रुकती नहीं थी. It just wouldn't. के बारे में भी तो ये है, लंदन के बारे में है. हाँ, सेम है. तो एक दफा हम सुबह उठे और we were like packing our luggage in the car, but it was a pleasant morning और एकदम इतनी शदीद बारिश स्टार्ट हो गई. तो वो फिर बच्चों ने हमें बताया कि this is very typical of London. बिल्कुल. इंग्लैंड में it takes an instant for the weather to change. I mean, you'll be feeling warm and hot, and the next minute you want to wear a sweater or a jumper. तो खैर anyway यहाँ आ गए. and जो चीजें मुझे different लगती थी, obviously lifestyle बहुत different है. घरों के हिसाब से देख लें या you know working over here is very different. You really have to work very very hard. Yes, you reap the benefits, लेकिन different है. हर चीज खुद करनी पड़ती है. मुझे याद है मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम वापस आ जाओ पाकिस्तान, एनजीओ खोल लो यहाँ के, पैसे ही पैसा होगा. तो you know, but I prefer this. I prefer this कि ठीक है, you work very hard, but at least you know you feel safe. and यहाँ के घर बहुत छोटे हैं. हॉलैंड के फिर भी बड़े हैं, जर्मनी के बड़े, लेकिन यहाँ के घर जो यहाँ जिसको बेडरूम कहते हैं, आई थिंक हम लोग पाकिस्तान में इसको स्टोर रूम बोलेंगे. मेरा जहाँ तक ख्याल है. एंड यू नो अब तो फिर भी बहुत चेंज हो गया. होमा, I'll try to keep this short ताकि the guys jump in. जब मैं यहाँ शुरू में आती थी ना, I'm talking about 80s की मैं बात कर रही हूँ. यहाँ पे 6 बजे की 5 बजे के बाद कोई शॉप नहीं खुली होती थी. कुछ नहीं मिलता था. कोई पाकिस्तानी या देसी खाना खाने के लिए मुसीबत होती थी. कुछ भी नहीं मिलता था. Even in London. Yes, even in London. Everything used to shut. अगर भूल गए वो दूध लाना या डबल रोटी लाना, तो then you've had it because next morning you have to wait. So बहुत difference आ गया है. And the credit goes to our people because हमारे लोगों ने यहाँ आके जो छोटे छोटे businesses start किए और मेहनत करनी शुरू की, they really changed the landscape in that respect. So बस yeah, I mean it's different. It's every place has its pros and cons. You're absolutely right. There's always upsides and downsides. Every society, every culture. You're absolutely right. तो मूसा भाई आप बताएं, आपकी कैसी स्ट्रगल रही है? वो हमने क्रिकेट की तो आपकी काफी स्टोरियां सुनी थी, साहब की और उनकी. तो आप बताइए स्ट्रगल कैसी रही, कि आके अच्छा लगा बड़े घरों से छोटे घरों में? असल में मेरे लिए बिकॉज मैं तो पैदा हुआ था पाकिस्तान एंड 18 महीनों पे आ गया था इधर यूके, तो मुझे इतना याद नहीं है पाकिस्तान से. लेकिन जब हम वापस जाते थे एवरी 3 or 4 years पाकिस्तान में, तो घर तो बहुत जैसे मेरे नाना का जो घर है उधर गुलबर्ग में एफसी कॉलेज के पीछे, वो तो बहुत बड़े घर हैं. लिटरली जो लैंड और में जो खाला का घर, जो जावेद मियादाद की सास है मेरी खाला, उनका जो घर है कनाल पे, वो तो इज लिटरली एकर्स ऑफ लैंड. वो तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते. वो तो सैकड़ों का घर है. एंड
इतना ग्रैंडियोसो है and वो आप नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन इधर फिर भी हैं अच्छे घर। मैनचेस्टर में आई सपोज बिकॉज इतनी आबादी नहीं है तो पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है, तो लोग फिर भी थोड़ा बहुत दे कैन अफोर्ड टू मूव आउट इनटू द सबर्ब्स है ना। माशाल्लाह से अच्छे घर भी हैं इधर जिधर हम रहते हैं, चीडल में, साउथ मैनचेस्टर में है ऐसे, लेकिन चेंजेस तो बहुत आई हैं। मैनचेस्टर का तो ऑब्वियसली थोड़े सेंट्रल लंदन से काफी थोड़ा फर्क है, हाँ, आर्किटेक्चर में बिल्कुल कुछ फर्क है। बिल्कुल। आई मीन लंदन इज वेरी ओल्ड, डोंट फॉरगेट लंदन इज सेंचुरीज ओल्ड, एंड उनकी जो कॉबल स्ट्रीट्स अभी भी हैं आपको मौजूद उधर इन पार्ट्स ऑफ लंदन, तो आपको नजर भी आता है कि ये बहुत पुराना है। एंड उनकी आर्किटेक्चर भी उसके बिकॉज ऑफ दैट, डोंट फॉरगेट वो आर्किटेक्चर भी वैसी है जैसे टावर ऑफ लंदन है, एंड वो जैसे बेकर स्ट्रीट है, ये सारी इलाके हैं, देयर लॉट ऑफ देम आर वेरी ओल्ड, तो उसकी वजह से तो वो you have to build around that basically. Yeah, absolutely. Manchester got very badly hit by the bombings in the 40s, World War II पे, तो उसके बाद जब तो फिर थोड़ा बहुत rebuild हुआ था, and that's one of the reasons why इधर बहुत flats हैं बहुत ज़्यादा, because they had to house big numbers of population, and उनके पास अगर आप घर बनाते तो फायदा नहीं होता, तो इसकी वजह से बहुत से फ्लैट्स हैं इधर। एंड हमें पाकिस्तानी लोग तो वैसे ही तंग आते हैं फ्लैट में रहने का, बिकॉज उनको तो यूं से खुले डुले घर हो यार, आमदे नाल बैठ जावे तो वो मुश्किल हो जाता है, तो वो वैसे ही। बट आई थिंक जैसे फरापा ने बोला है, लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, एंड यू नो व्हेन वी फर्स्ट केम, मीट लेने के लिए आपको 10-15 किलोमीटर जाना पड़ता था। वो एक दो ही दुकान थी जिधर हलाल मीट मिलती थी। हाँ, नहीं, हम इमिग्रेट चेंज कर दिए इन मुल्कों को बहुत ज्यादा। एंड अगेन बिल्कुल क्रेडिट जाता है उन शॉपकीपर्स को, उन बिजनेसमैन को जिन्होंने कोशिश करके वो फिर हलाल के मीट की दुकानें, जिन्होंने हमारी ग्रोसरी स्टोर्स खोली, जिन्होंने वो काम कर करके मेहनत 6 बजे सुबह से रात तक काम करते रहे, एंड टू मेक इट इजियर हमारे के लिए। बट चेंजेस तो बहुत ज्यादा आई हैं, एंड विल कम ऑन टू दैट जब मैं टकाई करूंगा लंदन की बात में। आप बताओ क्या स्ट्रगल, आप तो माशाल्लाह यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, तो थोड़ा अपनी इनिशियल स्ट्रगल, फिर जो कल्चरल शॉक, वो सब उसके बारे में कुछ बताओ। थैंक यू डॉक्टर हुमा मुझे पहले इनवाइट करने के लिए। और मैं सुन रहा था मूसा की और फरा की बातें, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे तो स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैं आया हूँ यहाँ पे किंग्स कॉलेज लंदन में मास्टर्स के लिए 1 साल था। मैं स्टूडेंट वीजा पे आया था, और आपको पता है जिस टाइम मैं आया हूँ वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस यूके गवर्नमेंट की थी कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप वापस चले जाएं। वो पोस्ट स्टडीज वर्क वीजा जो था वो अवेलेबल नहीं था, तो मेरे लिए जो मेन स्ट्रगल थी वो जॉब को ढूंढना था। और बिलीव मी, मैंने तकरीबन 1 साल में 108 जॉब्स अप्लाई की थी, और एंड में 3 ऑफर्स थी मेरे पास सिर्फ। तो मतलब क्योंकि उस टाइम ब्रेग्जिट भी हो रहा था, तो टियर 2 के ऊपर वीजा मिलना जो था वो बहुत मुश्किल था। तो बहुत ज्यादा कंपनियां जो थी ना, वो इवन अगर टियर 2 वीजा की स्पॉन्सर भी थी तो वो नहीं दे रहे थे, वो बिकॉज देखना चाह रहे थे कि इलेक्शन कौन जीतेगा। बट आपको पता है कि जब अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिखा हो कहीं, तो वो फिर आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने जब 100 से ऊपर जॉब्स अप्लाई कर रहा था, तो आपको पता है जब आप रिज्यूमे बनाते हो, कवर लेटर्स बनाते हो, तो आप बड़ी मेहनत के साथ बनाते हो, और कभी कभार आपको जवाब नहीं आता तो आपको बहुत गुस्सा आता था। तो आई थिंक वो पॉइंट था जो मेरे लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी था और चैलेंजिंग भी था। पर ऑब्वियसली आपको, क्योंकि मेरी यहाँ पे 3 खालाएं हैं, एक फुफ्फो है, बहन भी है, भाई भी है, तो एक जब बड़ी फैमिली हो तो आपको सपोर्ट करने वाले लोग बड़े होते हैं। उन्होंने कहा नहीं तुम करो, तुम्हें मिल जाएगी। तो मुझे याद है कि मुझे जब जॉब मिलनी थी तो इस तरह हुआ कि मुझे एक रिक्रूटर ने मैनचेस्टर बुलाया और मुझे कहा कि आके जरा तुम इंटरव्यू दो। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया तो नेक्स्ट डे उसने मुझे कॉल करके बोल दिया कि तुम्हें जॉब ऑफर कर रहे हैं हम। तो मतलब जब मिल रही थी तो 2 दिनों में मिल गई, जब नहीं मिल रही थी तो 108 अप्लाई करनी पड़ी थी। हाँ, एक बल्कि यहाँ पे भी ऐसे होता है कि जो डॉक्टर चाहे अपने रेजिडेंसी के लिए आते हैं ना, तो वो लिटरली 200-300 जगह पे अप्लाई करते हैं, उधर से 2 या 3 जगह से कॉल आती है। बिल्कुल। तो मतलब मेरे लिए मतलब एक तो चैलेंजिंग थोड़ी सी चीज थी कि यूके आना और फिर यूके के अंदर स्टे करना, वो इम्पोर्टेंट था। और मैं अगर किसी को नहीं पता तो मैं ये बता दूं कि टियर 2 वीजा होता है, इट्स बेसिकली अ वर्क वीजा जो कि 3 साल या फिर 5 साल के लिए मिलता है।
जो लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो उसके बाद फिर जो है आप 5 साल बाद ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है। Pretty much close to H1. यहाँ पे H1 शायद यूसे कहते हैं, फिर वो ग्रीन कार्ड बनता है, ग्रीन कार्ड फिर 5 साल के बाद सिटीजनशिप में ट्रांसलेट होता है। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। तो कल्चरल शॉक कैसा लगा? तो मेरी तो स्ट्रगल यही थी कि जब मैं, अच्छा एक चीज और कि किंग्स कॉलेज लंदन में जब मैं आया तो आपको पता है पाकिस्तान में स्टूडेंट्स यूनियन का कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टूडेंट यूनियन बैंड है पाकिस्तान के अंदर। तो जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि किंग्स कॉलेज लंदन की जो स्टूडेंट यूनियन है उसका प्रेसिडेंट भी पाकिस्तानी है, उसका पुराना प्रेसिडेंट मोमिन साकिब वो भी पाकिस्तानी था, और उसके अलावा कुछ इंडियन सोसाइटी के जो फ्रेंड्स थे, इंडियन सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट था वो भी मेरा दोस्त बन गया बहुत क्विकली। तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि नहीं नहीं यार तुम इलेक्शन लड़ो, तुम जीत जाओगे। तो मुझे याद है कि मैंने पिछले मैनिफेस्टोज देखे, अपना फिर मैनिफेस्टो तैयार किया, उसके लिए कैंपेन की पूरा दिन। तो फिर इसी तरह मैं एकेडमिक बोर्ड पे इलेक्शन जीता था। तो पर वहां पे एक चीज इलेक्शन के दौरान समझ में आई थी कि जो हांगकांग के लोग हैं वो देखने में तो चाइनीज लगते हैं, पर आप अगर उनको अगर आप उनसे पूछिए कि आर यू फ्रॉम चाइना, तो वो इस बात का बड़ा सख्त बुरा बनाते हैं। तो बड़ी ऐसी इस किस्म की चीजें मैंने ऑब्जर्व की थी अपनी इलेक्शन कैंपेन में। और मतलब ये मेरे लिए चीज थी कि जो बेसिकली हांगकांग है वो अपने आप को हांगकांग का कहते हैं, चाइना का नहीं कहते। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें पता चली थी। अच्छा फिर जो इंग्लिश वोटर होता है या जो यूरोपियन वोटर होता है, वो अगर आप उनके पास जाएं कि भाई आप वोट डालें या आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, तो वो कहते हैं कि हम आपका मैनिफेस्टो पढ़ेंगे। पर जो चाइनीज वोटर्स होते हैं दे जस्ट वांट टू गेट अवे विद इट, तो वो कहते हैं कि भाई वोट लो, हमारी जान छोड़ो। बल्कि मुझे याद है एमबी में स्पेशल हमें यहाँ पे सिखाया जाता है कि आपने बिजनेस चाइनीज फर्म्स के साथ किस तरह करना है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, बल्कि मेरे क्लास में काफी बच्चे बच्चियां थे जो चाइना के थे, तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि यू नीड टू हैव लाइक अ फैमिली टर्म विद देम। आप इकट्ठे गोल्फ खेलने जाओ, गोरे वाला सीन नहीं होता है कि बस आपने बिजनेस टर्म्स, नहीं, वो फैमिली तक लेके जाते हैं, वरना बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको कुछ चंद चीजें बताता हूँ कि जो मैंने की चाइनीज कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। आपको पता होगा कि जो किंग्स कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का स्कूल था उसमें 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो चाइना से थे। अब ऑब्वियसली ये हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, तो अगर आप इनका वोट कंफर्म कर लेते हैं अपने उसमें, तो आपके इलेक्शन जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने बिकॉज उनकी अपनी एप्स होती हैं, दे आर नॉट फेमिलियर विद फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वो आके इनिशियली बनाते बट दे डोंट यूज इट। तो उनका एक है वी चैट करके फॉर्म, व्हाट्सएप है उनका चाइना का। तो मैंने उस पर अकाउंट बना लिया और फिर मैंने गूगल ट्रांसलेट को यूज करके चाइनीज में मैसेजेस टाइप किए और अपने फ्रेंड्स जो मेरे इनिशियली चाइना से बने थे उनकी हेल्प मांगी। तो इस तरह मेरा मैसेज जो था वो चाइनीज स्टूडेंट तक भी पहुंचा था। तो इस तरह मुझे बहुत ज्यादा वोट्स इसलिए भी मिल गए थे। रैगिंग तो नहीं की? नहीं, वो आपको पता है यहाँ पे ऑनलाइन वोटिंग होती है, तो यू कांट डू दिस। तो रैगिंग की थी पाकिस्तान से इलेक्शन में। पाकिस्तान में तो डब्बे होते हैं, डब्बे उठाना तो बहुत इजी काम होता है, आपको पता है, वो तो हमने देखा भी आप सबने। डब्बे भी उठा सकते हैं और साथ में वर्दी वाले भी ले आते हैं जो थप्पे लगा दें अपनी मर्जी से। असद, आपने हमें डिसअपॉइंट किया, आप सही पाकिस्तानी वाला सबूत नहीं दिया। क्यों? रीजन? रिगिंग ही नहीं की। भाई फिर आपको पता है मेरे खिलाफ भी सेलेक्टेड के ही नारे लगने थे। हम पाकिस्तानियों का नाम कटवा दिया। तो अब आप बताएं फराज, जैसे आप तो माशाल्लाह आप और मूसा काफी अरसे से, तो क्या डिफरेंस लगता है आपके लंदन में और पहले के लंदन में, और स्पेशली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसमें कितना फर्क लगता है? पाकिस्तानी कम्युनिटी में तो कोई खास, मुझे तो पर्सनली कोई इतना बड़ा फर्क नहीं लगता, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है, ये मेरी अपनी पर्सनल व्यू है कि मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ बैठे हुए हैं या मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो अभी भी वो उस टाइम वॉर में फंस गए हैं जिस एरा में वो छोड़ के आए थे पाकिस्तान को। मेरा ये अपना मानना है, मैं जनरलाइज नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारे मैंने इस तरह देखे हैं
they are still stuck in that old way. Although they live here in the West, they reap all the benefits of the West. But लेकिन वो जहाँ पे कुछ उनके पास जहाँ पे उनकी I don't know what the word I should use, लेकिन वो बदल नहीं पाते. हाँ, first generation immigrants की curse. हाँ, and I see the difference between the genders in Pakistani community, and which I don't personally like. मुझे नहीं अच्छा लगता ये, तो मैंने उनमें ज़्यादा change नहीं देखा है. लेकिन हाँ, England यहाँ के जो लोग हैं, मैंने उनमें definitely change इस तरह का देखा है कि जो racism पहले हमारे face पे था, वो अब face पे नहीं है इतना. अब दोबारा फिर से उठ रहा है. I feel Brexit के बाद I feel कि जो पहले मुझे भी तक याद है कि जब मैं बहुत young थी, I must have been about 16 years old जब मैं first time England आई थी, पाकिस्तान से आई थी. मेरी खाला यहाँ को 50 साल से रह रही है. मेरे खालू कहते थे, जब हम मुझसे कहते थे अंकल आप कब तक यहाँ रहेंगे, वो यहाँ PI में काम करते थे. He was operations के general manager थे Flight Ops के. तो वो यहाँ जब रिटायरमेंट उन्होंने इधर ही ली थी, तो हमसे कहते थे आप कब तक यहाँ रहेंगे, तो कहते थे बेटा मेरे मुल्क पे उन्होंने 300 साल हुकूमत की थी, मैं तो नहीं जाने वाला. मैंने हुकूमत करके जा रहा है. हाँ, मैं अब मेरी बारी है, अब तो हमारी बारी है. तो हम मुझे ये याद है कि I was very young and मैं यहाँ आई थी. तो when you go to a country जहाँ पे predominantly अंग्रेजी बोली जाती है और इन सब के डायलेक्ट्स बड़े डिफरेंट हैं. इंग्लिश जो है ना वो कोई नहीं समझ सकता. कॉकनी, मतलब इवन आयरलैंड जाए तो मुझे लगता है उनका तो आपको समझ ही नहीं आती. और अगर आप स्कॉटिश को सुन लें तो वो तो बिल्कुल ही आप भूल जाएं. वो तो स्कॉटिश एक्सेंट इज वेरी डिफिकल्ट. मुझे अच्छी तरह याद है, आई वाज अप्लाइंग जॉब्स इन स्कॉटलैंड, तो वो JP Morgan का जो वहाँ पे डायरेक्टर था, उसने मुझे इंटरव्यू के लिए जब कॉल की तो मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई थी. और उनको हमारा एक्सेंट बिल्कुल ही मतलब हमारा अक्सर काफियों को समझ नहीं आता, लेकिन जो स्कॉटिश उनको तो बिल्कुल समझ नहीं आता हमारा एक्सेंट. लेकिन मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई तो मैं एक शॉप में गई, एंड बिकॉज मैं देसी हूँ, बिकॉज मेरी ऑब्वियसली आई एम अ ब्राउन पर्सन. we are proud. मुझे याद है कि शुरू में जब हम शॉप्स में जाते थे, स्पेशली सेंट्रल लंदन की शॉप्स में, जैसे हैरिस में चले गए, या जो बड़ी सेसल जी जमाने में बहुत बड़ी हुआ करती थी, तो वो पीछे हमारे भिड़ा कर देते सिक्योरिटी वाले कि हम क्या कर रहे हैं. और अगर हमने उनको उस जमाने में 50 का नोट होता था, 50 पाउंड का, मूसा आपको याद होता था? जी बिल्कुल 50 का नोट था. अगर 50 का नोट पकड़ा दिया, वो तो बस वो तो सारे उनके सायरन्स बज गए, बीकन ऑन हो गए, उलट पुलट उसको कर रहे हैं, सिक्योरिटी को बुला रहे हैं कि देसी बंदे के पास 50 पाउंड का नोट कहाँ से आ गया, पैसे कितों आ गए. हाँ, एग्जैक्टली. मुशर्रफ भी यार होने हैं. I remember that. अब ये फर्क हो गया है हुमा कि they are a bit more careful. It's still here. Racism हर एक में, हमारे अंदर racism. I agree. We need to learn to live with it. Yeah. But यहाँ पे अब वो change आ चुका है. And also हमारे लोगों ने जो इतना जैसे खाने के मामले में, रेस्टोरेंट्स में मेहनत करके हर चीज में, so you see that change. उनके बच्चों को हम देखते हैं, जो मेरे पेरेंट्स के एज के लोग आए थे, या मेरे से जो पहली जनरेशन थी वो जो आए थे, उनके बच्चे माशाल्लाह are doing very well. They've all studied. They success stories हैं. बल्कि मैं आपको मजे की बताती हूँ, पिछले अगस्त में वो इन इंग्लैंड, तो मेरे बच्चे they are second generation immigrant, तो वो भी कहते हैं कि they are less racist. मतलब लंदन के जो लोग हैं वो मतलब यहाँ पे मे बी बिकॉज ऑफ द रीजन वो हम सेंट्रल स्टेट्स में वो थोड़ी ज्यादा स्पेक्ट्रम उस तरफ है. मतलब न्यूयॉर्क में अगर आप जाओगे दैट्स डिफरेंट, पर हमारी सेंट्रल स्टेट्स आर डिफरेंट है. तो माय किड्स वर लाइक लंदन इज सो इंक्लूसिव. बिल्कुल. Unless you end up in the wrong area. Yeah, we went to exactly. Yes. पता नहीं ईस्ट लंदन गए थे शायद, वो कोई एक बड़ी मशहूर सी है डार्क चॉकलेट. मेरे बच्चे वो लाइक उन्होंने कहीं देख लिया, they were like we have to go there. सैफ के फ्रेंड से, मेरे मियाँ के फ्रेंड से बताया कि नहीं यार उधर ना जाना, वो बड़ा शेडी एरिया ना, उसकी वो एक नेबरहुड सी बड़ी शेडी. हम बच्चों ने करने नहीं, we have to go. तो बाकी they were right. It was like वो जितनी देर हम वहाँ पे रहे थोड़ा डर ही रहा हमें. नहीं एक्चुअली हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप. बाकी वो चीजें बदल गई हैं लेकिन बदली भी नहीं है. लोग असल में वो क्या कहते हैं, इन द लास्ट 40 years इन द यूके जो मैंने देखा है कि लोग असल में अभी भी वो समझते हैं ये गोरे हैं और हम अपने हैं. ये अभी तक नहीं समझ के हम ब्रिटिश हैं.
अंदर से नहीं समझते, कहते तो हैं बड़ा, वो मारते हैं तीर के रेड पासपोर्ट है साढ़े को, वो भी ब्लू होने लगा है थोड़ी देर बाद, लेकिन वो बड़ियाइयां मारते तो हैं, लेकिन दे डोंट बिलीव द ब्रिटिश, दैट्स द थिंग। एंड ये वाज़े नजर आ जाता है जब जैसे ही अगर आप थोड़ी सी बात शुरू कर लें हमारे लोगों से, तो वो पता चल जाता है कि वो किस चीज पे वो दे एग्रीड और नॉट एग्रीड, एंड वेदर दे एक्चुअली थिंक हाँ एक्चुअली हम ब्रिटिश हैं कि नहीं है। भाई मुझे ये बताएं, खाने की जो जगह उनमें कितना फर्क आया? क्योंकि आई एम आस्किंग द राइट पर्सन। खाने खाने में तो बहुत आई मीन हर चीज मिलती है अच्छी मैनचेस्टर में। कबीदे खाने हैं जो अफगानी के, जो लंबे टिक्के हैं, जो इतने 40 सालों में अब ज्यादा डिवर्स हो गया कि पहले भी काफी था? बहुत ज्यादा डिवर्स है। आई मीन यू कैन नाउ इधर डेफिनेटली इधर मैनचेस्टर में आपने अगर चाइनीज हलाल खाना है वो भी मिल जाता है, अगर आपने टिक्के कबाब खाने हैं वो भी मिलते हैं, अफगानी खाना है, लेबनी, सीरियन, क्या कहते हैं टर्किश, आपने जो सुशी वुशी भी अगर खानी है, मैं तो कभी खा नहीं सकता वो चीज, मुझे उल्टी आ जाती है देख के भी। वो I love it. I am okay, but my kids they love it. नहीं रॉ फूड नहीं खा सकते ना, नहारियां शारियां खानी है, वो तो सब कुछ पाइयां शाइयां एवरीथिंग मिलता है। पहले में मिलता था लेकिन बहुत दूर जाना पड़ता था। ये जैसे क्या कहते हैं सिटी सेंटर के पास मिलता था, अब तो हर एरिया में अब मिल जाता है, इतना दूर नहीं है। चीथम हिल में एक है, लॉन्ग साइड में दूसरी है, इधर भी लोकली जिधर हम साउथ मैनचेस्टर में रहते हैं इधर भी अब खुल गई है थोड़ी सी जगह जिधर आप ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लंदन के मैनचेस्टर एक्चुअली नॉट लंदन, नॉट मैनचेस्टर, लंदन और मैनचेस्टर के आपस में लड़ाई कराओ ना। देसी खाना अगर चाहिए तो ब्रैडफोर्ड जाओ, अगर देसी खाना है तो ये दिस इज नॉट राइट मूसा, ये बहुत गलत बात हो रही है। मैनचेस्टर और लंदन की बात हो रही थी, तो बीच में ब्रैडफोर्ड कहाँ से ले आए हो? लेकिन उधर अगर जाएंगे तो तौबा करेंगे, आप बोलेंगे मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा उधर। सबसे जंगली जाहिल हमारे लोग नहीं है, तो अल्लाह माफ करे। लेकिन आउट ऑफ द टू आई थिंक लंदन probably has more choice, but मैनचेस्टर का खाना बेहतर है। नहीं, आई एम सॉरी, लंदन में चॉइस भी है एंड लंदन में क्वालिटी भी है, एंड इतने जैसे ये तो मैं अग्री करती हूँ मूसा से कि जो इतने डिफरेंट रेस्टोरेंट्स मैनचेस्टर में हैं। सेम इज द स्टोरी यहाँ पे भी लंदन में, या इवन द आउटस्कर्ट्स एंड द सबर्ब्स, क्योंकि मैं सेंट्रल लंदन में नहीं रहती हूँ। आई लिव अबाउट 40 minutes away. I live in Surrey in a town called Camberley. And यहाँ पे इतने ज्यादा देसी लोग नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे भी देसी रेस्टोरेंट्स हैं। I have a restaurant called Sanja over here, which is it's actually owned by some Bengalis, and but it's really fantastic food. लेकिन यहाँ पे लंदन में कुर्दिश खाने, इराकी खाने, अफगानी खाने, जमैकन खाने, साउथ अफ्रीकन खाने, पाकिस्तानी, you know, आप हलाल की बात कर रहे थे मूसा, Alain Ducasse, which is a Michelin star restaurant at Dorchester, उसके रेस्टोरेंट में भी जो बीफ स्टेक है वो हलाल है। एक मेफेयर पे भी है, मेफेयर पे एक स्टेक की जगह है। मैं गया, मैं कजन्स के साथ गया हूँ उधर एक दफा, मुझे याद है। I think food choices जो है वो लंदन और मैनचेस्टर में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई हैं, बिकॉज मैं अपने कजन्स वगैरह से भी पूछता हूँ कि यहाँ लंदन में पहले कैसे था, और वो मुझे बताते थे कि यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब हलाल चीजें बहुत कम होती थी, लेट अलोन हैविंग द देसी रेस्टोरेंट्स। पर अब क्योंकि मैं मैनचेस्टर में भी अब रह कर आया हूँ, तो मुझे ऐसे फील होता है कि शायद मैनचेस्टर में फूड चॉइस बहुत ज्यादा रेडिली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि लंदन में देसी रेस्टोरेंट नहीं है, लंदन में भी देसी रेस्टोरेंट है, बट वो बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है। मैनचेस्टर जो है, मैनचेस्टर में तो बहुत ज्यादा देसी फूड है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने घर पे ही जस्ट ईट खोलता हूँ तो मुझे इतने ऑप्शंस नजर आ जाते हैं, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैंने मंगवाना क्या है। तो वैसे क्या अभी के असद क्या प्रेफर करते हो, मतलब वही देसी खाना कि मेडिटेरेनियन, कहाँ जाते हो स्पेशली? हुमा, मैं जो हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो मेरी पहली प्रेफरेंस ये होती है कि मैं खाना खुद बनाऊं। और मैं, आप यकीन करें, मुझे इन 2 सालों ने यूके में रहने में ऐसा ट्रेन किया है कि मैं कढ़ाई, चरगा और जितनी भी देसी चीजें होती हैं वो मैं बहुत अच्छे तरीके से बना लेता हूँ। और मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी लगाता हूँ, अगर आप में से मुझे कोई फॉलो करता है तो वहाँ पे आप लोग मेरी करना पड़ेगा अभी। हाँ बिल्कुल, अब हमें करना पड़ेगा। That's awesome.
और उसके अलावा मतलब रहा फूड चॉइसेस का, तो मुझे क्योंकि बर्गर्स वगैरह बहुत पसंद है, तो मुझे अच्छा बीफ हलाल बर्गर नहीं मिलता था, वो मुझे मैनचेस्टर से ही अच्छा मिला है, तो मेरा वोट मैनचेस्टर की तरफ है। टोकीज अच्छा अच्छा, oh my gosh. Two against one, two on one. with me. नहीं, but this is not like men ganging up against one woman. It's नहीं कोई नहीं, पर अगर आप ईस्ट टू कम्यूट की बात करें, तो ईस्ट टू कम्यूट जो है वो लंदन में ही ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ऑफ दी अंडरग्राउंड ट्रेन, और जो ओवरग्राउंड वहां पे चलती है उनकी टाइमिंग्स बहुत अच्छी हैं। यहाँ मैनचेस्टर में ये होता है कि जो आपके पास ट्रेन्स हैं वो क्योंकि लॉन्गर रूट्स पे ट्रैवल करती हैं तो बहुत ज्यादा डिलेज होते हैं, और कभी कभार बारिश की वजह से या ड्राइवर नहीं आता तो उसकी वजह से लेट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो मैंने फील किया मैनचेस्टर में है कि अगर आप मैनचेस्टर में रह रहे हैं तो आपके पास अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल जो भी आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहते हैं वो हो, अपार्ट फ्रॉम ट्रेन्स और ट्रैम्स। हालांकि you know, I agree with Asad, but I have to say this, if you compare London की जो public transport system है with other major cities in Europe, हमारी सबसे पेड़ी है लंदन की। Go to Madrid, go to Paris, go to Rome, anywhere in Europe, even don't get lost in Paris. Even Okay, I remember that. even in Eastern Europe, उनकी जो उनका public transport system Germany है, is fantastic. Yeah, Germany तो खैर, I love Germany. I lived in Hamburg for 4 years. I love Frankfurt का तो I love the taxis जो आपकी लंदन में जो black color के होते हैं, they're so historic, और वो देखने में इतनी fancy लगती है ना। लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर्स बड़े ही बदतमीज होते हैं हमारे यहाँ। My kids actually were like, उन्होंने हमें कहीं पे Uber नहीं लेने, they were like, नहीं, we want to ride this taxi. Uber is much better, वो ज्यादा सस्ता है। तो ब्लैक कैब्स तो बहुत महंगी हैं। महंगी है, the most expensive. Super expensive. इससे बेहतर है जरा वॉक कर लो माँ बाजी। वॉक करते ही सारा कुछ कवर हो जाता है। हम लोग जिस एरिया से गए तो आप सोचिए, हमारे तो मतलब खुली जगह, खुले घर, सड़कें खुली। यहाँ पे पैदल चलने का कॉन्सेप्ट नहीं, एवरीबडी नीड्स टू हैव अ कार और समथिंग, व्हाटएवर ही और शी चूजेस, लेकिन पैदल चलने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो वहां पे हम लोग हमने एक टैक्सी रोकी, तो हम उसमें बैठे, उसको हरिया पड़िया वो था भी कोई देसी ना, तो मेरा मियां थोड़ा सा गुस्सा हो गया, वो कहते हैं क्यों भाई बच्चे मेरे साथ, गिव मी अ मिनट, तो वो नहीं आई एम गोना गेट अ टिकट, और वो चला गया ना। तो वो मुझे याद है हम लोग को इतना वो अजीब सा लगा ना, क्योंकि हमें तो आदत ही नहीं थी इस तरह की। तो बाद में हमने फिगर आउट किया कि शायद वाकई आपको कोई 5 सेकंड या 10 सेकंड्स की विंडो होती है जिसमें टैक्सी ने रोक के लोड करके भाग जाना होता है वहां से। certain areas में they can't। बिल्कुल। और लंदन में ये प्रॉब्लम बहुत टेरेबल है, क्योंकि मैं मैनचेस्टर में जहाँ रहता हूँ इट्स अ वेरी बिजी रोड, बिल्कुल मैनचेस्टर विक्टोरिया का जो ट्रेन स्टेशन है उसके बिल्कुल तकरीबन साथ ही रहता हूँ, 2-3 मिनट्स की वॉक है वहां से। तो वहां पे भी बहुत ज्यादा रश होता है, लेकिन मैनचेस्टर में इस किस्म की मैंने नहीं देखा कि वो टैक्सी को बहुत ज्यादा अर्जेंसी होती है, वो आते हैं, रुकते हैं, अपना जो भी फूड डिलीवर करना है उन्होंने या पैसेंजर को उठाना है उठा लेते हैं। पर लंदन में तो बहुत ज्यादा करते हैं। वैसे असल मुझे ये बताओ कि हम देसियों ने किंग्स कॉलेज को कितना बदला है या नहीं बदला अभी? आई थिंक हमने बहुत बदला है। मुझे अच्छी तरह याद है कि क्योंकि आपको पता है जो अभी लास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं किंग्स कॉलेज लंदन के, वो रहे हैं शाश्वत इंडिया के, और आपको पता है वो पहले प्रेसिडेंट रह चुके थे इंडियन सोसाइटी के भी, तो हमारी आपस में ना बहुत अच्छी दोस्ती है। तो अभी भी शाश्वत जो है वो नवंबर में अपनी जॉब स्टार्ट करेगा, तो अभी कुछ दिनों पहले वापस लंदन भी आया, तो मैंने उसको कहा था मिलो। बट यहाँ पे पॉइंट बात करने का ये है कि पहले वो जो शाश्वत बने हैं प्रेसिडेंट, वो आपको पता है जॉइंट पैनल था पाकिस्तानियों का और इंडियन स्टूडेंट्स का और बांग्लादेशीज का, और इन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा था और इनका पूरा पैनल जीता था, और उसमें एक यूरोपियन स्टूडेंट थी। उसके अलावा उससे पहले आप चले जाएं तो वो प्रेसिडेंट पाकिस्तानी था, लड़का अहद महमूद नाम है, और उससे पहले भी प्रेसिडेंट था वो मोमिन साकिब था, एंड ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन इन 146 years ऑफ King's College London's history to become the president of KCLSU. तो और इवन अभी भी वहाँ की जो मेडिकल सोसाइटी है उसका जो प्रेसिडेंट है वो जैन है, वो भी पाकिस्तानी लड़का है। तो बहुत ज्यादा जो है चेंजेस आई हैं, और
मुझे तो ये फील हुआ था किंग्स कॉलेज में जाके कि मैं बड़ा खुश हुआ था कि भाई पाकिस्तानीज बहुत अच्छा कर रहे हैं इस लेवल के ऊपर, और वहाँ पे डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पे भी पाकिस्तानी जाते हैं। ऑब्वियसली इंडियंस बहुत ज्यादा इस चीज में आ गए हैं, और ऑब्वियसली उनका 7 टाइम्स मुल्क भी बड़ा है, वहाँ पे लोग भी बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने चीजों को जल्दी अडेप्ट भी किया। हम पाकिस्तानी थोड़ा स्लो अडेप्ट किया, बट वी आर गेटिंग देयर। इसका मतलब उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इनकी रिगिंग कर लेंगे। आपको पता है जब से मैं किंग्स कॉलेज मैंने छोड़ा है और उसके बाद जो इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा कंप्लेन आने लगी थी कि ये एशियन स्टूडेंट्स जो है ना, ये हर बंदे को अप्रोच करके उनको कहते हैं वोट डालो, तो व्हाई दे आर डूइंग इट, व्हाई दे आर नॉट लेटिंग एवरीवन टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स एंड देन वोट। तो उसमें एशियन स्टूडेंट्स का ये मौकफ था कि आपकी यूनिवर्सिटी में इतने ज्यादा लोग बाहर से आते हैं, ऐसे ऐसे मुल्कों से आते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन भी नहीं होते, तो उनको अगर जाके हम बताते हैं कि भाई ये कैंडिडेट्स है, आप इनको वोट कीजिए, तो उसमें बुराई क्या है। पर उन्होंने जब देखा कि बहुत ज्यादा एशियन स्टूडेंट्स जीतने लग गए, तो मैं तो उसको थोड़ा रेसिज्म में काउंट करता हूँ कि उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस ही चेंज कर दिया पूरा। अब वहां पे एक इलेक्शन बूथ बनाते हैं, वहां पे कुछ लैपटॉप्स रखे होते हैं या कंप्यूटर्स रखे होते हैं, वहां जाके आपको वोट करना होता है, तो इट्स वेरी कम्बर्सम, जिससे टर्नआउट भी लो होता है, तो ऑब्वियसली एशियन स्टूडेंट्स कैंट विन इजीली नाउ। क्योंकि वो यहाँ पे भी ऐसे ही ना, वो अब जो बच्चे हैं वो सब ये कहते हैं ना कि पहले आप लोगों के जमाने में ये चैलेंजेस नहीं थे, अब हमारे जमाने में वी हैव लाइक ब्राउन बच्चे आ गए, येलो पॉपुलेशन है, और दे आर वेरी कंपैटिटिव। तो ये जो इस एरिया के लोग हैं, ये बच्चे माशाल्लाह काफी प्रोग्रेसिव भी हैं, और दे आर गिविंग टफ कंपटीशन। और एक जो पहले यहाँ पे पॉइंट पे बात हो रही थी, जो पैसिव रेसिज्म की बात हो रही थी, मैंने जब, क्योंकि हालांकि बहुत ज्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी और इंक्लूजन है, ऐसा नहीं है कि सब बुरा है, पर आप जब इलेक्शन वगैरह या इन चीजों में जाते हो तो आपको थोड़ा सा पैसिव रेसिज्म जो है वो मिलता है। वहाँ पे बहुत ज्यादा जब मुस्लिम स्टूडेंट्स इलेक्शन लड़ते हैं पोस्ट पे, तो वो इजरायली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज को क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपका इजराइल पे क्या स्टांस है। तो आई रिमेम्बर देयर वाज अ फिलिस्तीनियन स्टूडेंट मोहम्मद सली, उसको वो बहुत अच्छा जो था, वो स्टूडेंट लीडर था, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते थे कि ही इज अ पैलेस्टीनियन, तो ये तो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, तो व्हाई शुड वी वोट फॉर हिम। तो वो यही कहता था कि भाई आप ये देखिए कि हम एज अ स्टूडेंट कैपेसिटी में काम क्या करते हैं, हमने जो काम करना है दैट हैज नथिंग टू डू विद इजराइल और पैलेस्टाइन। तो मतलब उन चीजों पे आपको नजर आता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट कोई मुस्लिम बना या कोई एशियन बना, तब रियल चेंज आएगा। So it was lovely talking to you all, और ये लंदन मैनचेस्टर का थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कंपैरिजन भी पता चल गया। So I hope you all enjoyed too. So talk to you all later inshallah. Take very good care of yourself. Assalamu alaikum ji. Walaikum salam.